अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सबका संडे बहुत अच्छा गया होगा एज दिस वाज अ वीकेंड। सो यस, वेलकम बैक टू हीना talk show, or to say Moments with Hina. Yes, I'm Hina here and so happy to be back, ताकि हम जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये सीज़न में हम काफ़ी सारी डॉक्टर्स लाएंगे ताकि आपको हम काफ़ी सारी नॉलेज स्प्रेड कर सकें। तो यस, वी आर हियर। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू से कि आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो डॉक्टर वहीदा हैं। वो एक कंसल्टेंट होम्योपैथिक है और सबसे बड़ी बात शी इज़ अमेजिंग डॉक्टर। शी डू लॉट ऑफ सोशल वर्क टू स्प्रेड नॉलेज। जितनी ज़्यादा वो नॉलेज स्प्रेड कर सकती हैं वो पूरी तरह से ट्राई करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर पाऊँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी सी इफ शी इज़ हियर। या let me invite her, guys. Assalamu alaikum, Dr. Wahida. Walaikum assalam wa How are rahmatullahi wa barakatuh. you? I'm great, Hina. How are you doing? Alhamdulillah. Dr. Wahida, आपका, I think you have to change your camera का position because आप ये दिख रही हैं twist. Yes, yes, I exactly. look horizontal. All right. I will have to do a few adjustments here because. No. Good Yes, enough? this is perfect. Yes, yes, perfect. Alhamdulillah. So how was the Sunday today? Great. Like all Sundays. I will not say how was your weekend because I know you are so busy as being a doctor. I know. So, So I yes. do my online cases on Sunday mornings also. So, yes, even Wow. Sundays are working. Yes. So this was smart enough for me to ask how was your Sunday, not weekend. You're right. So sweet of you, Dr. Wahida. Okay, Dr. Wahida, give us your brief introduction. Well, I think you've already introduced myself as a consultant homeopath. Yes, I am. And I've done my bachelor's in homeopathy from the CMPH Medical College, Mumbai. After which, after probably a decade after that, I tried to upgrade my qualifications. So I did an advanced course in homeopathy, which is called the CCAH, apart from the other, small courses that I've been doing. I've been practicing homeopathy for the past 28 years in and Wow. out of the country. I have had the opportunity to practice in the Gulf countries as well. And right now I'm in Mumbai, practicing at Millat Nagar, Lokhandwala, and I have a clinic in Jogeshwari. Wow. That's about Subhan. me. Yeah. That's too much. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So happy and proud. Okay, doctor, please elaborate about your journey as a working profession of the society. Working, so that's the one. Oh, well, Alhamdulillah, journey has been great, no regrets. And as it is rightly said, difficult roads lead to beautiful destinations. So if your That's road right. is not difficult, the charm of your destination doesn't become great enough. So as it has always been with working women, yes, it was challenging. I wouldn't say difficult, but especially in my initial days when my children were young, I had to tear myself apart between home, family, and profession. And but I would like to convey to all those women out there and all those young girls out there that these are the prime years where you don't have to give up. Because when I look back and reflect upon my early days, there were many instances where I probably would have quitted or given up, which thanks to the Almighty and the support of my family and my perseverance and determination, that I did not give up, because of which today I'm able to sustain myself.
Mashallah, mashallah, so sweet of you. Dr. Wahida, I remember, when I called you up, Dr. Wahida, I would like to, go live with you, because you share so much knowledge, Alhamdulillah, you do so much work, and you was like so excited. You told me, when I asked you which topic should we talk, and you were like, I'm going to talk on women's health, women's health. So, why did you choose this topic? Women's health is something very close to my heart. The main reason being a woman. And over the years, I have probably learned a little bit from my experiences with people because our profession is very interactive, and I've interacted with a lot of women. And I think being a lady practitioner is, you have a plus point of more women coming to you. And there are some things that I have realized, and I would like to give back to the society, which probably could prove beneficial to them. That's the reason I chose this topic. So sweet of you. So lucky we that we are going to I get hope so. a I lot just hope so. And before we begin, I think if there are a lot of people who messaged me asking me if they could write in some comments or they could ask some questions during the talk, and I think they should be welcome to ask. Are we? Yes, yes, definitely. All of them, all our audience are welcome. हमसे जो सवाल करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए. हम पूरी ट्राई करेंगे ताकि हम आपकी सवालों का जवाब दे पाए. और डेफिनेटली अगर हम नहीं कोई चीज कवर कर पाते हैं, तो प्लीज लीव योर क्वेरीज अंडर दिस वीडियो. हम जितनी जल्दी हो सके हम इंशाल्लाह उसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की, आपको जवाब देने की. एंड फिर भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट डॉक्टर वहीदा बैक ऑनलाइन फॉर यू गाइस. Okay. Okay. Why do you say, Dr. Wahida, that women health is, mostly neglected? मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने की. आई जी थिंक दैट जी इज व्हाट जी इज बहुत. रिक्वायर्ड. लेकिन अगर Yes. मैं if I switch back to English, please remind me. That's really fine. Women's health neglected, unfortunately, इसलिए कि हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे. सबसे पहले हम ब्लेम अपने आप को करेंगे, क्योंकि ये एक नोशन है कि वुमन इज एन आइडल ऑफ सैक्रिफाइस. ये हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हमारे मुआशरे में, बिकॉज वी बिलोंग टू द एशियन कम्युनिटी, यहाँ पर ज़्यादा देखा गया है. और इंडिया के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगी. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपको तो देना है, आपको सबके लिए करना है. हम देखते आए हैं हमारे मदर्स को, जिस तरह से वो हमारे पीछे सैक्रिफाइसेस करती आ रही है. सो एक नोशन सा बन चुका है कि ठीक है, सो व्हाट. और नोबडी रियली केयर्स टू फाइंड आउट और आस्क कि भाई आप अपने आप का ख्याल रख रही हैं या नहीं, until it is too late. तो इसमें दो फैक्टर्स हैं. एक तो जब मेरे पास मेजॉरिटी लेडीज आती हैं, मे बी आफ्टर 45, मेनोपॉज 50, उनके बोन्स ऑस्टियोपोरोज हो चुके होते हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो चुके होते हैं, जितना डैमेज होना था हो चुका होता है. And then it is a stage of no return. उनका डायबिटीज, थायराइड, everything is in shoots up. और तब जाके हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. So I think a stitching time saves 9. हमें इस बात का अवेयरनेस बहुत पहले से होना चाहिए कि ये जो, जैसे कि आप एक प्लांट ग्रो करते हो, तो जब उसके रूट्स को ही आपने ठीक तरह से न्यूट्रिशन नहीं दिया है, पानी नहीं डाला है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी आफ्टर लाइफ या आपकी पोस्ट मेनोपॉजल डेज अच्छे होंगे. सो इस तरह से नेग्लिजेंस बहुत होता है, स्पेशली जब मैं पेशेंट्स से अपने उनके बारे में पूछती हूँ, आपके टाइमिंग्स क्या है, व्हाट इज योर डेली स्केड्यूल. सो समटाइम्स लंच 4 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, ब्रेकफास्ट मिस हो रहे हैं. क्यों? तो हम इनके लिए लंच बना रहे थे, बच्चों के लिए लंच बना रहे थे, हस्बैंड के लिए डब्बा भेजना था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इन द प्रोसेस वो पानी पीना भूल जाते हैं, वो ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं. तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी तो गिव अप करेगी. आपने इतना कॉमन चीज और जो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे कवर किए कि दैट्स रियली ट्रू. वी इवन फॉरगेट टू इवन ड्रिंक वाटर. हम उठते साथ वी स्टार्ट working for our family, neglecting ourselves. So You so must be true. doing the same, I'm sure. No, alhamdulillah, now I started थोड़ा
taking care of myself, getting up, drinking water, doing little exercise. Very true. This Very is true. definitely, that's really important. आपने सही कहा, because even मैं खुद भी same चीज कर रही थी, neglecting myself. Now when I came to know कि यार ये body pain start हो गया है, and now as my age is growing, I'm seeing myself, changes in myself, तो लगा कि नहीं, अब तो टेक केयर करना पड़ेगा उससे पहले कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए, जैसा आपने कहा। तो इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप कि आज हमारी जितने भी विमेन्स और जितने भी लोग सुन रहे होंगे या आगे भी सुनेंगे, इंशाल्लाह दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट, कि हमें अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना है। बिफोर इट्स टू लेट, वी हैव टू टेक केयर, इंशाल्लाह। जी तो जी। डॉक्टर वहीदा, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? सॉल्यूशन से पहले हम प्रॉब्लम को समझें। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट प्रॉब्लम पे करूंगी। हमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज वुमेन? यस, दे मोस्ट ऑफ आर, देम। राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। जिस तरह से हमारी बनावट है, एक मेल और एक फीमेल की स्ट्रक्चर में फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, बायोलॉजिकली बहुत मुख्तलिफ है। और जितने चेंजेस एक लेडी अपनी लाइफ में अंडरगो करती है, राइट फ्रॉम प्यूबर्टी, लेट्स से 10 years तक तो चलो योर दोनों बच्चे एक बराबर होते हैं with the sexes, but the moment you hit puberty, that's when everything begins. So हम इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे between the age group of 10 to 20 years, then 20 to 40 years and 40 years and above, because ये major life changing periods हैं। तो 10-12 साल में जब आपके प्यूबर्टी हिट करती है, जो बॉयज को भी हिट करती है, तो हार्मोनल चेंजेस, इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा, आपके टेस्टोस्टेरॉन्स और आपके ईस्ट्रोजन एंड हार्मोन्स बहुत प्ले अप करते हैं, हमें पता है। बट व्हाट इज डिफरेंट इन गर्ल्स इज द पीरियड्स। तो एवरी मंथ जिस कदर हमारे ईस्ट्रोजन, हमारे प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी फिजिकल हेल्थ, और वी ऑल नो कि वी आर एक्सपेक्टेड कि हम उन ड्यूरिंग दोज डेज ऑल्सो हम उतना ही काम करते हैं जितने हमारे मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं। सो शुडंट वी बिकम मोर फिजिकली फिट in order to face those challenges? तो इसके लिए आपका डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका वाटर इनटेक, कैल्शियम इनटेक बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में जो आती है वो है एक्ने। एंड वी आर टुडे लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर लुक्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। रिसर्च बताता है कि पिछले 10 सालों में suicidal cases in young girls between the age of 17 and 20 has doubled up. So true. Why? Because of acceptance. उनको एक्सेप्ट होना है, इंस्टा पे पिक्चर डालनी है, फेसबुक पे पिक्चर्स डालने हैं, कितने लाइक्स आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो नहीं होता है तो आप इमोशनली डाउन हो जाते हैं, यू अंडरगो डिप्रेशन, यू अंडरगो ऑल सॉर्ट्स ऑफ टर्मोइल्स एंड यू एंड अप योर लाइफ। और ये गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा, आई थिंक 1 in 3 केसेस दैट आई गेट टुडे इज पीसीओएस। ये इतना okay. कॉमन हो गया है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो अगेन यंग लड़कियों में होता है। इससे आपके पीरियड्स में इम्बैलेंसेस होते हैं, वेट गेन होता है, एक्ने है, फेशियल हेयर, हर तरह से देयर इज ओनली नेगेटिविटी। लोग कहना शुरू करते हैं, अरे क्या हो गया है, इतनी मोटी हो गई हो, इतनी बुरी दिखती हो। तो अगेन दैट सेल्फ रिप्रोच, तो वो फिजिकली और मेंटली आपको इम्बैलेंस करता है। सो दिस इज अमंग्स द यंगर एज ग्रुप। फिर जब हम देन यू गेट मैरिड एंड देन देयर कम्स अ टाइम, रिप्रोडक्टिव एज आपकी शुरू हो जाती है, एंड देन द स्टोरी बिगिंस। So प्रेगनेंसी true. इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। बहुत ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है टू डेवलप डायबिटीज, टू डेवलप ब्लड प्रेशर, ये ट्रिगर होती है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले यू गेट योर सेल्फ सेट, आपके पूरे टेस्ट सही होने चाहिए। आपको रेगुलरली आपके गायनेक को विजिट करना चाहिए। कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वो भी इग्नोर करते हैं, एक फर्स्ट टाइम जाएंगे एंड देन आफ्टर 6 months दे वॉक टू द क्लिनिक, So just to true. see if the baby is fine, just to see if the baby is fine.
you know, और What अपने about her health? मेडिसिन, अपने मेडिसिन रेगुलरली लेना, ये सब चीजें इग्नोर होती हैं. देन कम्स द डिलीवरी टाइम. इसमें जस्ट फॉर यू टू नो कि जितना डैमेज हमारे नर्व्स को, आर्टरीज को, वेन्स को, मसल्स को होता है, इट्स ट्रिमेंडस, राइट. Okay. तो इसके लिए रिकवरी भी होनी चाहिए, और रिकवरी के लिए रेस्ट, मेंटल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट एंड न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगेन ऑलमोस्ट 50% women में कॉमन है. ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारी लेडीज आफ्टर द बेबी इज बॉर्न ये फील करती हैं कि हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, रोना आता है बार बार, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है. लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है कि ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे ट्रीट Oh, करना okay. चाहिए, Is राइट. it? Okay. यस. सो हम समझते कि मे बी रात को नींद ठीक से नहीं मिल रही है, इस वजह से ऐसे हो रहा है, या बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, इस वजह से हो रहा है. सो यू नीड हेल्प एंड यू नीड टू गो टू द राइट पर्सन फॉर हेल्प. तो आप अप्रोच कीजिए, आप कोशिश कीजिए समझने की कि मुझे क्या हो रहा है. टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, बट अगर वो इस लेवल तक जाए कि आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल इम्बैलेंस हो रही है, सो यू नीड हेल्प अगेन. So true. Actually, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना वहीदा, डॉक्टर वहीदा, कि हमें सही में मालूम नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम है. बिकॉज हमने देखा है दूसरों को भी यही चीजें गो थ्रू करते हुए, और प्रॉब्लम को बर्दाश्त करते हुए. तो एवरीवन इज अडॉप्टिंग कि नहीं, यही यही प्रोसेस है लाइफ का, दिस इज द प्रोसेस. बट नाउ यू आर सेइंग कि दिस इज नॉट अ प्रोसेस. मीन्स विमेन्स की जो बॉडी है, इट गोज थ्रू सो मैनी चेंजेस इन लाइफ, जो मेंस नहीं जाते हैं इतने चेंजेस के थ्रू. एग्जैक्टली. तो दैट इज द रीजन उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फ्यूचर में, बिकॉज ऑफ द निग्लेक्शन ऑफ देमसेल्फ. राइट. ओके, राइट. ओह, दैट्स कूल. ओके, तो ये तो क्लियर है कि मैन डोंट अंडरगो सो मच चेंजेस as women, obviously. What's the best, form or treatment for a women? Right. We still haven't talked about the latter age group जो 40 plus होता है, जब Mm-hmm. menopause hit करना शुरू होता है. तो इसमें 80% of women come down with osteoporosis. जो आपके बोन्स में कैल्शियम होती है वो खत्म होना शुरू होती है. वो इस वजह से नहीं कि आपका डाइट सही नहीं है या आप इनफ नहीं खा रहे, क्योंकि पूरी फैमिली तो सेम ही खाती है. ये एक आर्गुमेंट होता है पेशेंट्स का कि हम भी तो वही खाते हैं जो दूसरे खाते, तो हमें क्यों. आपको इसलिए क्योंकि जब आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होना शुरू होते हैं और आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स राइज होना शुरू होते हैं, तब ऑस्टियोपोरोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है. सो इसको विटामिन डी और कैल्शियम से टॉप अप करना जरूरी होता है. अगेन मेनोपॉजल वुमेन एंड मिडिल एज वुमेन में थायराइड डिसऑर्डर्स 7 to 10 times ज्यादा होते हैं. फिर मैंने डिप्रेशन वगैरह की तो बात कर ही ली. डायबिटीज, अर्लियर डेज men used to suffer more, but recent research studies have shown कि recent past 10 सालों में ladies have become more prone to diabetes than men, as well as heart diseases. So we need to look into the factors के क्या वजह हो सकती है. हाँ, क्या वजह हो सकती है? That's what, like such a drastic change in the graph you're saying कि पहले मेंस को ज्यादा होता था, अब women's को ज्यादा हो रहा है. So why is that? Right. Again, responsibilities, mental and emotional health, आपके nutritional requirements different होते हैं. जैसे कि between the age of 10 and 20 जब growing period है आपका, तो calcium है, आयरन है, vitamins हैं, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Then again when you're at the child bearing age, प्रोटीन्स, रिच प्रोटीन डाइट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कैल्शियम, yes, during pregnancies, post pregnancies, depending upon whatever you're going through. And then menopausal age 40 plus, regular exposure to sunlight, exercise, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो 1 घंटा दिन का आप अपने आप को देते हो. You are So true. dedicating that time to yourself, and you realize you start
feeling that, you know, the changes that you're going through, you start appreciating the changes in your body. सो वो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज अपने डाइट में लाएं. और नेग्लिजेंस में ये होता है कि हम बैलेंस आउट नहीं करते हैं हमारा कैलोरी इनटेक, और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है, अगेन इसीलिए कि हम घरों में इतने बिजी हो जाते हैं. वी ऑल्सो हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दी वर्किंग वुमेन. अब हम बात करते हैं लिबरेशन की, यू नो, विमेन्स लिबरेशन. वी लिव इन अ विमेन्स लिबरेटेड सोसाइटी. तो एज अ वर्किंग वुमेन, और जितने मेरे पास लेडीज आती हैं जो वर्किंग है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनकी प्रॉब्लम तो हाउस, यू नो, होम मेकर से भी ज्यादा बड़ी है. सिंपली Oh, बिकॉज seriously. उनको तो वो भी करना है जो बाकी होम मेकर्स करते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनको वो भी करना है जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो उनका करियर उनसे डिमांड करता है. सो So true. ये कहाँ है कि अगर आप एक वर्किंग वुमन हो, अगर आप थक हार कर घर पर वापस आती हो तो आपका खाना आपके लिए रेडी है, कोई आपके लिए चाय या Not पानी सर्व possible. कर रहा है. नॉट पॉसिबल, राइट? Not सो possible. यस, सो व्हाई डू वी कॉल इट अ लिबरेटेड वुमन देन? क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है, So राइट? true. तो उसे तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनना है फैमिली के लिए, प्लस बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी उतनी ही करनी है जितनी वो अदरवाइज लेती. प्लस यू नो शी हैज टू सुबह उठ के सारी फैमिली के लिए पहले खाना बनाओ, मेक श्योर कि एवरीबडी गेट्स, मेक श्योर कि बच्चे आपके स्कूल पहुंचे, फिर अपने बारे में सोचो. सो मैं ये नहीं कहती हूँ कि यू नो सभी ऐसे होते हैं, वी आर नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, बट ये देखा गया है कि मेजोरिटी, एंड लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी, जहाँ पर आज की तारीख में बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, तब जाके अपने बच्चे को एक सही स्कूलिंग दे पाते हैं या एक So सही परवरिश कर पाते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग, and when it comes to, you know, taking responsibilities, there should be liberation there also. Well, हम टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहे हैं, but then आप पूछ रहे थे कि वजह क्या है, तो ये एक हाँ, बहुत because बड़ी this is वजह है. also, areas where we really need to point. ये बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज, लाइक जैसे आप बता रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि सही में ये तो रियल में होता है. व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक टू माय नेबर्स एंड ऑल, ये बहुत कॉमन टॉपिक आपने जो है पॉइंट किया है, जो हर कोई गो थ्रू कर रहा है. और खासकर जो विमेन्स, वर्किंग विमेन्स है, उन्हें इतनी सारी चीजें करना है और फिर उसके बाद उन्हें ऑफिस जाना है. तो दे निग्लेक्ट अ लॉट, अपने आप को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देती हैं. And once they are crossing, like now when my friends and all, they are crossing the age of 30, तो बहुत ज्यादा they are facing lot of problem, काफी सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. वो समझ नहीं आता है कि ये हार्मोनल चेंज है या वर्क प्रेशर है या व्हाट एग्जैक्टली इट इज. एंड वी डोंट नो कि हमें किससे कंसल्ट करना है, किसके पास जाना है. डू वी रियली नीड हेल्प और दिस इज अ लाइफ प्रोसेस? तो जैसे Right. आपने कहा कि यू नीड अ हेल्प व्हेन यू आर कंफ्यूज, कि आपको लग रहा है कोई चीज डिफरेंट हो रही है आपके रेगुलर रूटीन से, आपके इसमें, तो यू रियली नीड हेल्प. सो वी नीड टू कंसल्ट सम डॉक्टर फॉर अस. राइट. अच्छा. लाइक तो मैंने ठीक है. लास्ट वीक डॉक्टर रुक्षिदा का जो टॉक था वो भी अटेंड किया था, एंड शी राइटली सेड दैट हेल्प मिलने के लिए पहले आप रियलाइज तो करें कि आपको हेल्प की जरूरत है. सो एंड ट्रू. आजकल नाउअडेज स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, people have realized the importance of therapy, counseling, psychiatrists. तो don't call them mental, don't consider कि हम psychiatrist के पास जा रहे हैं तो हम पागल हैं, या हम therapy के लिए जा रहे हैं तो हम पागल हैं. नहीं. One more shocking survey information मैं आपको दूंगी कि every human being, all of us, men and women, हमारी लाइफ के किसी भी एक स्टेज पे डिप्रेशन के थ्रू से जरूर जाते हैं. सो ट्रू. अभी आप किसी 70-year-old से पूछे कि आपने लाइफ में कभी डिप्रेशन फेस किया है, तो दे लुक एट यू एंड से पता नहीं, राइट? तो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, जबकि सो ट्रू. आप रियलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या होते हैं.
तो the internet is there, you can talk to a friend. अगर आपकी फैमिली में कोई एल्डरली मेंबर हो, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं. आई अंडरस्टैंड काउंसलिंग महंगी है, थेरेपीज महंगी है, साइकियाट्रिस्ट महंगे हैं, आपके फैमिली फिजिशियन भी आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड या देयर आर लॉट ऑफ वेज. जैसे आपने सही कहा कि पीपल स्टिल लाइक अभी 2022 में भी आई हैव सीन बहुत करीब के लोग के वो लोगों को अगर बोलें कि यू रियली नीड यू गो फॉर काउंसलिंग इफ यू आर नॉट एबल टू टैकल फ्यू थिंग्स, अगर आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है ऑल, तो वो डायरेक्टली कहते हैं कि हम पागल हैं क्या, हमें नहीं समझ रहा है, तो वी आर जस्ट शेयरिंग इट विथ यू, वी आर नॉट मैड, व्हाई आर वी गोइंग टू गो देयर. दे रियली डोंट नो, इट्स नॉट, आप किसी पागल खाने थोड़ी जा रहे हैं. आपको, दे आर डॉक्टर, दे आर प्रोफेशनल, दे नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू, पुट यू ऑन मेडिकल और समथिंग लाइक दैट until and unless you need it. व्हाट डू यू मीन बाय कि हम पागल नहीं है, हम ये नहीं है. लाइक जैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि अगर डायबिटीज है वी हैव टू टेक मेडिसिन एंड कुछ हमें कंट्रोल में लाना है. हमें अगर हाई बीपी है तो हमें हाई बीपी की दवा लेना है, अगर हमें हार्ट की कोई डिजीज है हमें उसकी दवा लेना है. लेकिन अगर हमें ये एहसास नहीं होता है कि देयर इज, वी हैव अ ब्रेन जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो करता है, वो हर चीज हमें बताता है, सिखाता है. अगर उसमें किसी तरीके का इम्बैलेंस हो रहा है या कंफ्यूजन हो रही है तो इवन दैट नीड अ ट्रीटमेंट, दे नीड अ डॉक्टर. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, यू जस्ट गो, एटलीस्ट टॉक टू डॉक्टर, एटलीस्ट टॉक टू समवन हु इज नॉलेजेबल, हु कैन हेल्प यू आउट. बट seriously, I myself get those कि you don't talk all this thing rubbish, we are not mad, हम लोग को नहीं लाना है, हम क्या को दिमाग की दवा खाएंगे, ऐसा बहुत ज्यादा सुनाई में आता है. और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने बता ये दूं नोट कि कराया. दिमाग की दवा इज नॉट द सॉल्यूशन. हम्म. अगेन कमिंग बैक टू होम्योपैथी, वी हैव सीन ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रिजल्ट्स, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो यहीं से काम शुरू करता है. हमारा होम्योपैथी में बिलीफ ही ये है कि इंसान बीमार क्यों होता है, आपको फिजिकल सिकनेस क्यों होती है, क्योंकि हर चीज की जड़ होती है आपका दिमाग. तो जब आपका माइंड इम्बैलेंस्ड है तो वो आपके हॉर्मोन्स को, आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके सिस्टम को इम्बैलेंस करता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट physical problems. So there is something called as the the neuroendocrine system and the psychoneuroendocrine system, जो शुरू होता है आपके दिमाग से, फिर वो अफेक्ट करता है आपके नर्व्स को, फिर वो अफेक्ट करता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, एंड दैट अफेक्ट्स योर बॉडी. सो व्हेन, जब एक पेशेंट आता है विद अ कंप्लेंट, लेट्स टॉक अबाउट पीसीओएस, क्योंकि आज ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है? इसमें probably everybody knows कि आपकी ovaries में eggs बनना, there is too many eggs which don't grow properly, and because of which आपके cycles irregular हो जाते हैं. And as I talked earlier, weight gain and facial hair and testosterone levels rise होते हैं. So what is happening is आपकी ovary malfunction होने की वजह आपकी ovary नहीं है, उसकी वजह आपके हॉर्मोन्स हैं. और आपके हॉर्मोन्स को ट्रिगर कौन कर रहा है? आपका ब्रेन. तो आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए नॉट टू द ओवरीज बट टू द एंटायर सिस्टम, व्हिच होम्योपैथी डज. राइट. सो व्हेन कन्वेंशनल मेडिसिन में, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में, वो आपको हॉर्मोन्स दे देते हैं एंड दे स्टार्ट कंट्रोलिंग योर हॉर्मोनल सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड. तो जब आप कोई भी चीज को आउटसाइड से इंडक्ट करते हो तो वो तब तक ही काम करेगा जब तक आप उसको खाएंगे, एंड द मोमेंट आप उसको स्टॉप करेंगे यू आर बैक टू वेयर यू वर. तो अगर उस चीज को जड़ से निकालना है, उसकी प्रॉब्लम को जड़ से निकालना है, तो उसकी तह तक जाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी डू. अच्छा डॉक्टर, ये जो पीसीओडी, ऑस्टियोपोरोसिस इज पीसीओडी, राइट? PCOS is ovarian disorder. Osteoporosis is bones में आपकी जो कैल्शियम कम हो जाता है. Totally different things है. Okay, all right. अच्छा डॉक्टर, लेकिन आप you can ask here. actually doctor, one of our viewer have asked, with change of lifestyle and hectic work schedule, people are getting married late, and of course pregnancy is late too. How healthy is to have a child
after the age of 35 to 40? Not healthy. Mhm. After the age of 30, the pregnancies that set in are called as precious pregnancies. उसको Okay. प्रेशियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, एज रिलेटेड चेंजेस, उसको हम किसी भी सूरत में हाल में अवॉइड नहीं कर सकते हैं. एंड रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो 20 to 30 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स है. और रिसर्च स्टडीज ये बताता है कि एबनॉर्मलिटीज जो होती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं, वो लेट प्रेगनेंसीज में बहुत कॉमन है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एंड दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो यस, इट इज, आई वुडंट से नॉट रिकमेंडेड, वो आपकी चॉइस है, बट फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिटन इन द बुक्स. ओके. अच्छा डॉक्टर, पीसीओडी ये जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद ही विमेन्स में होता है या अर्ली एज में भी डिटेक्ट होता है? अर्ली एज में ज्यादा डिटेक्ट होता है. आज जितने पेशेंट्स मेरे पास, मैक्सिमम पेशेंट्स पीसीओएस के हैं, वो बिटवीन द एज ऑफ 18 and 24 है. 18 to और 24? यस, दैट वुड बी वेरी शॉकिंग, यंग गर्ल्स. और उसकी मैं आपको वजह बताना चाहूंगी, क्योंकि इस बारे में मदर्स को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है. उसकी रीजन क्या है? लाइफस्टाइल, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. लेट नाइट्स बहुत कॉमन है कि हमारी लड़कियां जो है, या लड़कियां और लड़के दोनों, यंगस्टर्स, रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक दे आर ऑन द मोबाइल. इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, या आप कुछ भी वीडियो देख रहे हो, या पढ़ाई भी कर रहे हो फॉर दैट मैटर, पर आपका जो सर्केडियन रिदम है, आपका जो बॉडी साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है. और स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं स्लीपलेसनेस, माइग्रेन्स, हेडेक्स. वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप लेट के अपना मोबाइल देख रहे हो. आपकी आंखों पर प्रेशर जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है. लाइट्स ऑब्वियसली कम होती है या बंद होती है क्योंकि पेरेंट्स सो रहे होते हैं. अगेन आपकी आंखों पे प्रेशर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड हो जाता है. एंड देन जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, अगर आप कोई भी चीज को देख रहे हो, व्यू कर रहे हो, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट शुड हैपन. सोने से 1 घंटा पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए, राइट? इसलिए हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल है, वॉक पे चले जाए खाना खाने के बाद, या एक्सरसाइज कर ले थोड़ी बहुत, एंड देन यू गो टू स्लीप. सो ये एक लाइफस्टाइल चेंज. सेकंड इज जंक, विच इज अगेन वेरी कॉमन अमंगस्ट यंगस्टर्स. तो ये दो चीजें हैं जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूंगी, कि आप समझें. लेट नाइट, नाइट वॉचिंग, it is not cool, it is not trendy. जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आप लेट नाइट पार्टिंग ना करें, और अपनी प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल को मेंटेन करें, विच विल रियली रियली हेल्प यू. जस्ट टेकिंग मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन. एंड एक्सरसाइज अगेन, बिकॉज आपका खाना इस तरह से हो रहा है, तो यू हैव टू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं 10 kgs पुट ऑन, 15 kgs पुट ऑन हुआ, उसके बाद दे सीक ट्रीटमेंट. So, damage has been done to a certain extent. ओके. आजकल अभी आपने 18 से 24 इयर्स की बच्चियों के बारे में कहा कि आज एक्चुअली ये लॉकडाउन में छोटे बच्चे भी जो है, स्कूल स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है, वो भी इतने एडिक्टेड हो गए, एडिक्टेड हो Yes. गए हैं टू द स्क्रीन, टू दिस थिंग. लाइक ऑब्वियसली उनकी 3 घंटे की स्कूल होती है, एंड देन आफ्टर दैट दे आर डूइंग देयर homeworks on the screen as well. Then afterward they need obviously सारे friends online game खेल रहे हैं, so even they want to play game again on the screen. Then they all जी. are getting addicted so much to the screen. वो बच्चों को किस तरीके से हम कंट्रोल में लाए? I think Yes. ये बच्चों में और ज्यादा चीजें डेवलप होने के चांसेस है, Obesity और आज बहुत कॉमन हो गया है पोस्ट पेंडेमिक. इनफैक्ट अगर हम पोस्ट पेंडेमिक इलनेसेस की बात करें तो वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, कि देयर इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स जो पेंडेमिक की वजह से शुरू हुए हैं. उसमें से नंबर 1 है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस, शटडाउन्स ऑफ बिजनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, वेट इंक्रीज होना, बच्चों का जैसे आपने कहा इस तरह से. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग टू द मदर्स? फ्रस्ट्रेटेड, so क्योंकि true. हस्बैंड भी दिन भर घर में है, बच्चे भी दिन भर घर में है, आपकी साइकिल 24/7 शुरू है. तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम. तो इसको हैंडल करना है. Obviously.
और सबसे पहले इसको समझना है और फिर उसको उसका सोल्यूशन ढूंढना है. So true, because so true as being a women और being a working women, उन पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आया था कि उनको घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को जी. स्क्रीन से भी हटाना है, उनके होमवर्क भी करना है, खुद का भी करना है. तो women have neglected, जो थोड़ा बहुत भी केयर होता था खुद का, वो एकदम खत्म हो गया था. मी टाइम वॉज नॉट देयर एट ऑल, जो थोड़ा बहुत देते थे. एंड जी. इट वॉज सो ट्रू. आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पॉइंट की है कि एक तो आपने कहा कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट. एंड थर्ड इज व्हेन यू फील देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन और हैपनिंग टू यू, जिसे आप टैकल नहीं कर पा रहे, गेट अ एक्सपर्ट एडवाइस. यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट समवन नियर बाय यू हु कैन हेल्प यू आउट विद दैट प्रॉब्लम. वेरी माशाल्लाह, ट्रू. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा डॉक्टर, आप अम, हमारी ऑडियंस के लिए क्या टेक अवे मैसेज देना चाहती हैं, और कुछ एडिंग समथिंग मोर? My takeaway message to all the women out there is love yourself first. और मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सेल्फिश बन जाएं, जस्ट लव ओनली योरसेल्फ, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु डू दैट आल्सो. बट ओके. स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, ये समझिए कि आप अल्लाह ताला की एक बहुत बेहतरीन मखलूक है. And that Allah has mentioned in the Quran that you are the best of the creations. So इस चीज का एहसास कीजिए कि you are the best of creations, and just like every creation needs maintenance. आपकी गाड़ी को आप मेंटेन नहीं करोगे, ऑयल नहीं डालोगे, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगी, तो वो डेफिनेटली खराब होनी है. उसी तरह से अपने आप को भी मेंटेन करना लग्जरी ना समझे. अपने लिए वक्त निकालना, आपकी मनपसंद चीजें करना, इवन इफ इट इज जस्ट गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, अगर वो आपको खुशी दे रही है तो वो आपका मेंटेनेंस का हिस्सा है. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ. दैट्स माय मैसेज. So sweet of you, doctor. Thank you. Thanks a lot giving us such a precious time and so much knowledge. Alhamdulillah. Definitely I hope कि माशाल्लाह जो लोग भी हमारे साथ लाइव आए थे, उन्होंने भी काफी चीज गेन की होगी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी तो देखेंगे. They will definitely learn lot of things from this. Inshallah. And I Alhamdulillah. thank you, Thanks a Hina, lot, for doctor. giving me the platform and space to, voice out my thoughts. Jazakallah khair. Assalamu Jazakallah khair, alaikum. doctor. Thanks a lot. Thanks a lot to accept my invite. Thank you very much. Thanks. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So yes everyone, आप सबने देखा, आप सबने सुना कि आजकल की स्टडीज एकदम अपोजिट हो रही है. पहले जैसे मेंस को हार्ट अटैक ज्यादा होते थे, हाई बीपी एंड डायबिटीज होती थी, अब विमेंस को बहुत ज्यादा हो रही हैं. सो विमेंस, प्लीज, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी ड्यूटीज निभानी है, बहुत सारी चीजें करनी है, बट द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर यू. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू स्टॉप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी अपनी हेल्थ की टेक केयर कीजिए, थोड़ा देखिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, what kind of help do you need, whether it's mental, it's physical. Study yourself and work on it, because आपको ही अपने आप को स्टडी करना है, अपने आप की टेक केयर करना है. There is no one else going to stand for you, because alhamdulillah you're the one who do everything, so it's not difficult for you to take care of yourself, right? चलिए, take care. Assalamu alaikum and thanks for joining.